Everyone. Welcome to economics class. Today we are going to start our last chapter of Indian economic development, that is development experience of India, Pakistan and China, a comparative study. In this very chapter, we will discuss about the growth strategies of these three economies, as well as we will discuss about the comparative study of the economic strategies followed or adopted by these economies. Let's start with the topic. This is the map of uh, China, India, and Pakistan. In this map, yes, in this map, we can clearly see that the geographical area of China is largest as compared to India and Pakistan. These three are the neighboring countries. You can see in this uh, map that these three are the neighboring countries, and these are the Asian countries, and most of the features that prevail in these economies are almost similar. In the later part of the chapter, we will discuss about the historical background of these three economies as well as the economic strategies adopted by these economies. Let's start the topic. The very first, these are the key points that we are going to discuss in this very chapter. This is strategy of growth of India, Pakistan and China. We will have a, a complete glance about these three economies. After that, we will discuss about the comparative performance of the economies of India, Pakistan and China. Today, we will discuss about the first topic as well as the one part of the second topic, that is about the economy of China. Now, first is development path of India, Pakistan and China. All the three countries started their development path at the same time. India and Pakistan got independence in 1947 and People's of Republic of China was established in 1949. Actually, India and Pakistan both were a single economy, and the second one is China. These two, that is India and China, were the colonies of वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट. जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, जैसे हम अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इंडिया को सफ़र करना पड़ा क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था. बिल्कुल ऐसे ही जो चाइना था वो किसी एक वेस्टर्न कंट्री का कॉलोनी नहीं था, रादर सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही कॉलोनी थी. और चाइना की इकोनॉमी को ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न इकोनॉमीज़ ने, सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक्सप्लॉइट किया. इसको वाटरमेलन ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज़ भी कहा जाता था. वाटरमेलन ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज़ का मतलब ये था कि सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थे वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे. तो 1945 में इंडिपेंडेंट हुआ और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक बना. इंडिया और पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, 1950 में इंडिया रिपब्लिक बना. मीन्स अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली तीनों ही कंट्रीज़ की एग्जिस्टेंस लगभग एक ही टाइम में आई. नाउ all the three countries had started planning their development strategies in similar ways. India announced its first 5-year plan in 1951, Pakistan announced in 1956, and China in 1953. Dear students, you are to learn these years because these are very very important. इस बार पेपर में एक क्वेश्चन भी आया था इसमें से. नेक्स्ट आ जाइए. India and Pakistan adopted similar strategies such as creating a large public sector and raising public expenditure on social development. तीनों ही इकोनॉमीज़ ने, क्योंकि इंडिपेंडेंट काफ़ी लेट हुए थे ये और बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल नीड्स थी, तो उन नीड्स को पूरा करने के लिए क्या अडॉप्ट किया गया? द सिस्टम ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट. Means that development, economic as well as social development, were
taken by the government as its responsibility. Then, this is about both India and Pakistan had adopted mixed economy model, but China had adopted command economy model of economic growth. हमारे यहाँ पर mixed economy था, that is the coexistence of private and public sector, but China adopted the policy of statism. Statism का मतलब होता है where the state or the government plays the keen role, means all the resources are owned, managed and controlled by the government, and द इकोनॉमिक डिसीशंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सो इंडिया एंड पाकिस्तान adopted the system of mixed economy, but China adopted the policy of statism or the command economy. Till 1980s, all the three countries had similar growth rates and per capita income. लगभग एक जैसा ही ग्रोथ रेट चल रहा था 1980s में. Economic reforms were implemented in China in 1978, in Pakistan in 1988, and in India, economic reforms were adopted in 1991. बेटा इस बार पाकिस्तान का क्वेश्चन आया था कि when did economic reforms were adopted in Pakistan? The answer is 1988. अगर हम यहाँ से देखें, चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स काफ़ी पहले अडॉप्ट कर लिए और रिज़ल्ट क्या हुआ कि 1984 तक आते आते चाइना में जो ग्रोथ रेट था वो अप्रॉक्सीमेटली 15% हो गया, एवर हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री. बहुत ज़्यादा, मोर देन 15% हो गया था. क्यों? क्योंकि उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पहले अडॉप्ट कर लिए थे. आई थिंक यू आर वेरी मच able to understand the new economic policy, that is new economic reforms of liberalization, privatization and globalization that were adopted in India in the year 1991. You have studied about NEP in chapter number 6. Now this is about the China. अभी तक जो टॉपिक हमने डिस्कस किया ये तो था कॉमन फीचर, मतलब हमने जो तीनों ही इकोनॉमीज़ में ग्रोथ strategy adopt की. Now our main focus will be on China. China, after the establishment of People's Republic of China under one party rule, all the critical sectors of the economy, enterprises and lands owned and operated by the individuals were brought under government control. Because as we have already studied, instead of mixed economy pattern, China adopted the policy of statism. Statism is a system in which all the resources are owned, managed and controlled by government, and all the economic decisions, that is what to produce, how much to produce, for whom to produce, etc. are taken by the government. जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अगर लैंड एक्वायर होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे देती है. चाइना में ऐसा सिस्टम नहीं होता. प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है और अगर उसको किसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है तो वो प्रॉपर्टी लैंड जो है या प्रॉपर्टी जो है उसको गवर्नमेंट अपने आप ही ओन कर लेती है क्योंकि वो उसी की होती है. तो बहुत फ़र्क होता है. हमारे यहाँ पर हेरिडेटरी राइट्स होते हैं, चाइना में हेरिडेटरी राइट्स नहीं होते. सो वहाँ पर स्टेटिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट की गई. A program named the Great Leap Forward or GLF campaign was initiated in 1958, which aimed at industrializing the country on a massive scale. Under this program, people were encouraged to set up industries in their backyards. जैसे इंडिया में अब हम आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं. इंडस्ट्रीज़ को बूस्टअप करने की कोशिश की जा रही है. इंडिया में स्टार्टअप पॉलिसी आई तो बहुत सारी पॉलिसीज़ अब आई, लेकिन चाइना ने 1958 में ही अपनी इकॉनमी के इंडस्ट्रियल सेटअप को बूस्टअप करने के लिए एक GLF पॉलिसी अडॉप्ट की थी. इसका नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी. इसका ईयर भी आपने लर्न करना, दिस इज़ 1958. और इसमें क्या था कि लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो कुछ भी प्रोड्यूस करें, किसी भी तरह की इंडस्ट्री लगाएं. इवन लोगों ने अपने घरों में जो पीछे के बरामदे होते हैं वहाँ पर लोगों ने इंडस्ट्रीज़ को शुरू किया. दिस इज़ GLF. और बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी द इंडस्ट्रियल फाउंडेशन ऑफ चाइना became very strong. Now, in 1965, Mao Tse-tung introduced the Great Proletarian Cultural Revolution,
under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside. मीन्स इस पॉलिसी में क्या था कि जो स्कॉलर्स थे, स्टूडेंट्स थे, जो ट्रेनिंग लेने के बाद उनको गांवों में जाना होता था वहाँ पर काम करने के लिए। इससे क्या हो रहा था, आपने एक माइग्रेशन वर्ड पढ़ा था। माइग्रेशन में क्या होता है कि अगर हम लीस्ट डेवलप्ड एरिया से हाई डेवलप्ड एरिया की तरफ मूव करते हैं तो हम वहाँ से टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लेते हैं। कुछ ऐसा ही सिस्टम ये था कि जो स्कॉलर्स और प्रोफेशनल्स थे, ट्रेंड लोग थे, उनको रूरल एरिया में जाकर वहाँ पर लोगों को ट्रेंड करना होता था। मीन्स रूरल एरिया के डेवलपमेंट पे काम करना पड़ता था। दूसरा एक वहाँ क्या सिस्टम था कि जब ये लोग ट्रेंड और प्रोफेशनल गाँवों में जाएंगे तो वहाँ से कल्चर भी सीखेंगे। मतलब ट्विन बेनिफिट्स उनको मिल रहा था कि प्रोफेशनल्स और ट्रेंड पढ़े लिखे लोग गाँवों में जाएंगे तो अपने कल्चर को मेंटेन रखेंगे। दूसरी बात, ट्रेंड लोग वहाँ जाएंगे तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट को भी फोकस कर पाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। बच्चे आपको इनके ईयर भी लर्न करने हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज इन रूरल एरियाज कम्यून सिस्टम वॉज स्टार्टेड अंडर विच पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स। इसमें क्या होता है, कम्यून सिस्टम पूरे रूरल एरिया को 2600 कम्यून्स में डिवाइड किया गया। इसमें 3 लेवल इसके रखे गए। पहले था टीम, सेकेंड था ब्रिगेड और थर्ड था कम्यून। अब पहले था टीम, TEAM। टीम जो थी ये एक्चुअल वर्कर होते थे, ब्रिगेड इनके लिए प्लानिंग करते थे और कम्यून जो होते थे इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे। और कम्यून जो था वो हाईएस्ट लेवल था। कम्यून कलेक्टिव फार्मिंग के लिए था, लोगों को साइंटिफिक फार्मिंग के लिए प्रमोट करने के लिए कम्यून सिस्टम बनाया गया था। कम्यून सिस्टम में रूरल डेवलपमेंट को भी एक फोकस रखा गया। मीन्स जो पैसे बच जाते थे, जो फंड्स बच जाते थे, उसको लोगों के रूरल एरिया में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए खर्च किया जाता था। तो रूरल डेवलपमेंट बहुत पहले ही चाइना का एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी का इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ पॉलिसी बन गया था। और अगर हम इंडिया के कॉन्सेप्ट में बात करें तो अभी भी रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ स्टिल अ फार क्राई। अभी भी डेवलप नहीं है हमारे रूरल एरियाज़। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो कि जो पॉलिसीज़ अभी हम बना रहे हैं, चाइना उनको अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट में ही अडॉप्ट कर चुका है। देन रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन चाइना in different phases. In the initial phase, reforms were initiated in agriculture, foreign trade and investment sector. और अगर आप इंडिया को थोड़ा सा रिकॉल करो, हमने पढ़ा था कि एक ड्रॉबैक है हमारा LPG पॉलिसीज़ का, दैट इज़ नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में किसी तरह का कोई इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। जबकि चाइना में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए थे वो शुरू ही कहाँ से हुए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर से। इन द लेटर फेजेस रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारे कंट्री में हमने पकड़ा ही किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर को। जबकि चाइना ने सबसे पहले एग्रीकल्चर को लिया, फॉरेन ट्रेड को लिया और इन्वेस्टमेंट को लिया। द रिफॉर्म्स प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व ड्यूअल प्राइसिंग। बच्चे ये ड्यूअल प्राइसिंग आपने बहुत अच्छे से करना है। ड्यूअल प्राइसिंग, ड्यूअल का वर्ड होता है दो, डबल। दिस मीन्स फिक्सिंग द प्राइसेस इन 2 वेज। आपने अपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ा था, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का, मीन्स प्राइस कंट्रोल। बिल्कुल वैसा ही सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया। फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाई एंड सेल fixed quantities of raw materials and products on the basis of prices fixed by the government. मीन्स कुछ ऐसा रख दिया कि फार्मर्स को रॉ मटेरियल चाहिए तो इतने यूनिट्स तक उनको सस्ता मिलेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा उनको ख़रीदना है तो उनको मार्केट के कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लेना पड़ेगा। मतलब इनिशियल या इसेंशियल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल तो सस्ते दामों पर मिलेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा उनको चाहिए तो उसके लिए उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही सेलर्स के लिए किया गया कि उनको कुछ एक लिमिटेड अमाउंट तो गवर्नमेंट के प्राइस पर बेचना है। मतलब जिस पर प्रॉफिट नहीं वो अर्न कर पा रहे, जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है उतने पर ही बेचना है। और अगर इससे ज़्यादा उनको बेचने की अपॉर्चुनिटी मिलती है
तो वो उसको मार्केट प्राइस पर बेच सकते हैं। दोबारा से समझिए, द रिफॉर्म्स प्रोसेस also involved dual pricing. This means fixing the prices in two ways. Farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of raw material and products on the basis of prices fixed by the government, and rest were purchases and sold at market prices. In order to attract foreign investors, special economic zones, these are popularly known as SEZ, special economic zones, were set up. SEZ is a geographical region that has economic laws different from a country's typical economic laws. ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मतलब ऐसे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में के लिए जहाँ सामान प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स ही वहाँ पैसे लगाते हैं, फॉरेन कंपनीज़ के लिए आप कह सकते हो। तो इनमें क्या है, टैक्स हॉलीडेज़ देना या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर देना। दो तरह से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। एक तो हो गया उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, डोमेस्टिक डिमांड के लिए प्रोड्यूस कर रही हैं। एक ऐसा हो गया जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं और सामान भी कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, तो उनके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया में अब आप न्यूज़ में देखते हो कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आना चाहती हैं। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द सुटेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट इस तरफ बहुत ध्यान दे रही है, क्योंकि इंडिया इज़ अ कैपिटल डेफिशिएंट कंट्री, लेकिन इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो हम उसी चीज़ को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम फॉरेन कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग दैम suitable economic opportunities. Next, this is about the development strategies of China. बेटा हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा और कुछ एक पॉलिसीज़ को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। After the establishment of People's Republic of China, under one party rule, all the critical sectors of the economy, enterprises and lands owned and operated by individuals were brought under government control. Certain development strategies of China are discussed below. The very first one, this is Great Leap Forward. This campaign, initiated in 1958, aimed at industrializing the country on a massive scale. People were encouraged to set up industries in their backyards. In rural areas, communes were started. Under the commune system, people collectively cultivated lands. बच्चे GLF के बारे में ये पॉलिसीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि ये इंडिया में अडॉप्ट नहीं की गई। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, वाई चाइना हैज़ एन एज ओवर इंडिया, चाइना हमसे आगे क्यों है। तो वहाँ पर हम इन पॉलिसीज़ के बारे में मेंशन करेंगे कि चाइना ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो बहुत यूज़फुल पॉलिसीज़ थी, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। वो पॉलिसीज़ उसने बहुत पहले अडॉप्ट कर ली थी। तो हम इन के बारे में डिटेल में वहाँ मेंशन करेंगे। आपको ईयर लर्न करना है पॉलिसीज़ के बारे में, व्हाट कम्स अंडर दीज पॉलिसीज़, ये आपने डिटेल में लर्न करना है। देन ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने। इन 1965 माओ त्से तुंग started a cultural revolution on a large scale. In this revolution, students and professionals were sent to work and learn from the countryside. Unlike GLF, the Cultural Revolution did not have an explicit economic rationale. इसको लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया था, क्योंकि इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। ये जो माओ त्से तुंग था, ये एक माओस्ट लीडर था, जो माओ जो था ना, एक मतलब रिफॉर्मर था, तो उसकी पॉलिसीज़ के रिलेटेड था ये। लेकिन बहुत सारे, ये जो पॉलिसी थी इसका पर्पस यही था कि जो माओ का कल्चर है वो सब लोग उसको समझें और उसके लिए लॉयल बने रहें। तो बहुत सारे लोग जो थे इस कल्चर को पसंद नहीं कर रहे थे। जैसे एक विचारधारा आप कह सकते हो, जैसे हम अपने कंट्री में बात करें कि कांग्रेस पार्टी है, वो कुछ ऐसा सिस्टम बना ले और बहुत सारे लोग
कांग्रेस एक ऐसा सिस्टम बना ले कि सभी उसको फॉलो करें, मतलब उसके लिए एक लॉयल्टी बनी रहे, तो बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही था कि माओ जो ओपिनियन था, जो विचारधारा थी, उससे जोड़ने के लिए इसको पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था, तो बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। मतलब इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। एक तो जो प्रोफेशनल थे वो गांवों में जाएं, वहाँ जाकर लोगों को ट्रेन करें। दूसरा, वहाँ से कल्चर सीखें, मतलब लॉयल्टी सीखें इस विचारधारा के लिए। देन इन 1978 reforms. Since 1978, China began to introduce many reforms in phases. The reforms were initiated in agriculture, foreign trade, and investment sector. In agriculture, lands were divided into small plots which were allocated to individual households. They were allowed to keep all income from the land after paying taxes. इसमें क्या था, ये कम्यून सिस्टम का है, छोटे छोटे प्लॉट्स में बांट दिया गया, इंडिविजुअल्स को दे दिया गया, इंडिविजुअल हाउस होल्ड को वो इनकम जनरेट करें और टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करें और बाकी इनकम उनके, मतलब उनको मोटिवेट किया गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। इन लेटर फेज reforms were initiated in industrial sector. All enterprises which were owned and operated by local collectives in particular were allowed to produce goods. ज़्यादातर कलेक्टिव प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा रहा था, चाहे वो एग्रीकल्चर था, चाहे वो इंडस्ट्रीज थी। बच्चे, कलेक्टिवली जब किसी काम को किया जाता है तो उससे रिटर्न ज़्यादा मिलता है। एक तो वर्क मैन पावर बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और रिसोर्सेज भी बढ़ जाते हैं। एक आदमी के पास 500 रुपये है तो उसका इन्वेस्टमेंट लेवल 500 रुपये रह गया, लेकिन अगर 25 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सब 500 रुपये डाल रहे हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट लेवल भी बढ़ जाएगा। तो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर था, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर था, हर सभी जगह पर कलेक्टिव्स को प्रमोट किया जा रहा था। At this stage, enterprises owned by government, that is state board enterprises, like in India we call them public sector, वहाँ पर क्या था, state board enterprises were made to face competition. In reform, prices were fixed in two ways. अभी मैंने आपको बताया ड्यूल प्राइसिंग पॉलिसी या ड्यूल प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। इसमें क्या था, एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड कोटा कर दिया गया, कोटा फिक्स कर दिया गया कि इतने तक सस्ते दामों पर बेचा जाएगा और सस्ते दामों पर ख़रीदा जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको महंगा लेना पड़ेगा। जैसे हम ऐसे रखें कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 250 यूनिट्स तक आ रहा है, तब तो आपको 5 रुपी यूनिट्स के हिसाब से पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 250 यूनिट्स से ज़्यादा कंज्यूम करना है तो फिर आपको 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। मतलब मिनिमम या इसेंशियल रॉ मटेरियल जो था वो तो सस्ते दामों पर प्रोवाइड कराया गया, और उसके बाद अगर ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए फिर कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा गया। मतलब इससे फार्मर्स को भी बेनिफिट भी हो और उनको मार्केट प्राइस का, मतलब उनको मार्केट का अपॉर्चुनिटी भी मिले और साथ में इसेंशियल रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी हो सके। दिस वाज द पॉलिसी. Farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government, and the rest were purchased and sold at market prices. Over the years, as production increased, the proportion of goods or inputs transacted in the market also increased. वो कोटा जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा और मार्केट प्राइस पर उसको ज़्यादा बेचे जाने लगा. The goal of China's economic reforms was to generate sufficient surplus to finance the modernization of the mainland Chinese economy. Means modernization चाहिए था, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए थी, उसके लिए फंड्स जनरेट करना ये एक ऑब्जेक्टिव था. अक्सर जब मैं मोबाइल चलाती हूँ, फेसबुक देख रही होती हूँ, तो मुझे वहाँ पर कई सारी वीडियोस ऐसे मिल जाती हैं जो चाइना, अब तो टिकटॉक कम हो गया, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस मुझे अब भी नज़र आ जाती हैं जिसमें हम देखते हैं कि चाइना की होती हैं वो वीडियोस. उसमें हम देखते हैं कि कितने मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे फोल्डेबल
फर्नीचर होता है, दीवार के साथ लग जाता है, जैसे जैसे जितना चाहिए। सोफ़ा बनाना तो सोफ़ा बन जाता है, टेबल बनाना है टेबल बन जाता है, स्टेयर्स बनानी है स्टेयर्स बन जाती है, डाइनिंग बन जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया। In order to attract foreign investors, special economic zones were also set up. So, dear students, today we have discussed about the China economy. In the next video, we will discuss about India and Pakistan. We will, after studying the strategies, economic strategies followed by India and Pakistan, we will be able to compare Chinese economy, Indian economy, and Pakistan economy in a better way. So, dear students, go through the topic properly and please send me your doubts if you have any. Enjoy your day, do your work properly, stay home, stay safe. Have a wonderful day. Goodbye, dear students.